بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 9۔ جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے قاہرہ میں داخل ہوا تو قاہرہ کے لوگوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ قاہرہ شہر کے صدر دروازے پر چہروں پر نقاب ڈالے ان گنت لڑکیاں ہاتھوں میں دف لیے کھڑی تھی، پھر وہ دفیں بجاتے ہوئے سلطان کے لیے فتح مندی اور کامیابی کی گیت گا رہی تھی۔ جدھر سے بھی سلطان کا گزر ہو رہا تھا وہاں مکانوں کی چھتوں کے اوپر سے سلطان اور اس کے لشکریوں پر پھول پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ سے سلطان کو اس کی فتح مندی پر مبارکبادی بھی دی جا رہی تھی۔ بوڑھا الیاس، اس کی بیوی سفتونہ، آموس، رودا اور سمیر بھی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں بھری بڑی بڑی ٹوکریاں تھیں جو وہ سلطان کے لشکر پر نچھاور کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ جفت سازوں کے بازار ہی سے گزرنا تھا۔ سلطان کا لشکر جب جفت سازوں کے بازار میں داخل ہوا تو رودا مکان کی چھت پر اپنے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں بھری ایک بہت بڑی ٹوکری لے بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے شاید انتظار تھا امیر تورنتائی کا۔ سلطان کا لشکر جب بوڑھے الیاس کے گھر کے نزدیک آیا تو رودا بیچاری پریشان ہو گئی، اس لیے کہ اس لشکر میں امیر تورنتائی موجود نہیں تھا۔ لشکر سے آگے خود سلطان رکن الدین تھا۔ سلطان رکن الدین کے دائیں جانب امیر سیف الدین اور بائیں جانب حسام الدین اپنے گھوڑوں پر سوار تھا، اور لوگ اپنی اپنی چھتوں سے سلطان کے علاوہ ان کے سالاروں اور لشکریوں پر بے پناہ انداز میں پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ قریب ہی کھڑی رودا کی نانی سفتونہ نے رودا کی اس حالت کو بھانپ لیا تھا اور اس نے دیکھا رودا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اپنے سر کو اس نے ایک ہاتھ سے تھام لیا، دوسرے ہاتھ میں جو پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر سفتونہ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور رودا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بڑی شفقت میں اسے نے پوچھا، رودا میری بیٹی کیا ہوا؟ جواب میں رودا بیچاری کے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا، نانی جب لشکر میں امیر تورنتائی نہیں ہے تو پھول پتیاں نچھاور کرنے کا کیا فائدہ؟ پر جلد ہی رودا کو اپنی اس بات کے بے تقا ہونے کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً علیحدہ ہو گئی اور پھولوں بھری ٹوکری جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی وہ اس نے اٹھائی اور بڑی تیزی سے وہ پتیاں لشکریوں پر نچھاور کرنے لگی تھی۔ اس کی اس گفتگو سے سفتونہ گہری سوچوں میں کھو گئی تھی، تاہم وہ بھی دوسری طرف لشکر پر پتیاں نچھاور کرنے لگی تھی۔ بلفور کا حکمران برالون ایک روز اپنے قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب اس کی حسین اور جمیل نوخیز اور نوعمر بیٹی برنیس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بائیں جانب اس کے لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ اور دیگر 3 اجنبی بیٹھے ہوئے تھے، اور سب کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ برالون کا چوکیدار اندر آیا اور برالون کے سامنے تعظیماً ارادت مندی سے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے اس نے برالون کو تعظیم پیش کی۔ اس کے بعد وہ بول پڑا، آقا لیوس نام کا وہ لنگڑا راہب جو اس سے پہلے بھی بلفور شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، وہ قیصر میں داخل ہوا ہے اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ لیوس کا نام سنتے ہی برنیس خوشی میں پھول کی طرح کھل اٹھی تھی۔ قبل اس کے کہ برالون اپنے چوکیدار کی اس گفتگو کا جواب دیتا، اپنی مسکراہٹ اپنی خوشی کو ضبط کرتے ہوئے برنیس جوالہ مکھی کی طرح پھوٹ پڑی، تم میں سے کس نے لیوس کو قیصر کے اس کمرے میں داخل ہونے سے روکا ہے اور باہر کھڑا رہنے کی جرات کی ہے؟ محترم لیوس ہمارے یہاں عزت اور وقار رکھتے ہیں، وہ جب چاہے قیصر کے کسی بھی کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ داروغہ بیچارہ اپنی صفائی میں کہہ اٹھا، خاتون محترم، لیوس کو کسی نے نہیں روکا بلکہ انہوں نے خود ہی مجھے اندر بھیجا تاکہ میں ان کے اندر آنے کی اجازت حاصل کر سکوں۔ اس پر برنیس نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ اور وقت ضائع کیے بغیر ان کو اس کمرے میں بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی چوکیدار مڑا اور قیصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قیصر کے اس کمرے میں امیر تورنتائی داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بلفور کا حکمران برالون، اس کی بیٹی برنیس اور سپہ سالار اعلیٰ سیگر اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جو دوسرے افراد قیصر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حیران اور پریشان اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جو ہی امیر تورنتائی راہب کے بھیس میں اپنے آہنی آنسے کو ٹیکتا ہوا قریب آیا، اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیرتے ہوئے شہد جیسی آواز میں برنیس نے پوچھا، محترم لیوس آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ قاہرہ گئے اور ہمارے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ امیر تورنتائی سے پہلے ہی برالون بول پڑا، برنیس میری بیٹی، پہلے لیوس کو بیٹھنے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں لیوس ہم پر کیا انکشاف کرتا ہے۔ اس موقع پر برنیس نے ہاتھ کے اشارے سے لیوس کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تورنتائی آگے بڑا، شہنشین پر چڑھا
اور बिन्नीस के पहलू में जा बैठा। बाकी सब अफराद भी अपनी अपनी नशिस्तों पर जम गए थे। थोड़ी देर तक कैसर की इस कमरे में खामोशी रही, फिर तुर्निताई की आवाज सुनाई दी। मोहतरम बुरालून, बिलफोर्ड से रवाना होने के बाद मैं सूसा की तरफ गया। वहां मुझे मायूसी हुई। मैं जब वहां पहुंचा तो सूसा की यहूदी बस्ती का सरदार आमूज और उसकी बेटी रुदा हवेली में नहीं थे। मैंने चंद यौम तक एहतियातन क़याम किया और लोगों से यहूदी सरदार आमूज और उसकी बेटी रुदा के मुताबिक पूछा। मुझे बताया गया कि बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून ने आमूज की हवेली के इर्द गिर्द अपने मुसलह जवान मुकर्रर किए थे ताकि आमूज और रुदा कहीं भागने ना पाए। उन लोगों का कहना था कि एक रोज आमूज, उसकी बेटी रुदा और रुदा का भाई समीर 2 घोड़ों की बग्गी में आपके मुसलह जवानों के साथ रवाना हुए थे। उनका रुख बिलफोर्ड की तरफ था। वो दरिया लितानी के किनारे किनारे सफर कर रहे थे। बाद में उनका कुछ पता न चला वो कहाँ गए। मोहतरम बुरालून, क्या आमूज अपनी बेटी रुदा और बेटे समीर के साथ बिलफोर्ड में पहुंच चुका है? बुरालून ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर जवाब देना शुरू किया। मोहतरम लूस, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। जो मुसलह जवान मैंने वहां मुकर्रर किए थे, चंद दिन पहले उनकी लाशें दरिया लितानी में आगे जाके मिली थी। इसके बाद जब मैंने तहकीक कराई तो पता चला कि मेरे मुसलह जवानों के साथ आमूज, उसकी बेटी रुदा और बेटा समीर सूसा से बिलफोर्ड की तरफ आने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मुसलह जवानों को तो किसी ने कत्ल कर दिया। आमूज, रुदा और समीर का पता ही नहीं, ना वो मेरे पास आए। मैंने उन्हें बहुत तलाश कराया लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। देख लूस मेरे बेटे, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इस हादसे की हकीकत क्या हो सकती है? मोहतरम बुरालून, जहां तक मेरा अंदाजा है इसके मुताबिक सूसा की यहूदी सरदार आमूज ने किसी से साजबाज की होगी। उसने आपके मुसलह जवानों को यह झांसा दिया होगा कि वो अपने बेटे और बेटे के साथ बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून की तरफ जाना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी को उसके हरम में दाखिल कर दे। लिहाजा आपके मुसलह जवान उसका साथ देने पर आमदा हो गए। मेरे ख्याल में आमूज ने इंतजाम कर रखा होगा कि भारी रकम की वजह उसने कुछ मुसलह जवान तैयार किए होंगे जो पहले ही उसने दरिया लितानी के किनारे कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर बैठा दिए होंगे। जब वो अपने बेटे और बेटी के साथ बग्गी में दरिया लितानी के किनारे आपके मुसलह जवानों के साथ सफर कर रहा होगा तो जो जवान उसने घाट में बैठाए हुए होंगे वह आपके मुसलह जवानों पर हमलावर हो गए होंगे और आपके मुहाफिजों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया होगा। उसके बाद अपनी बेटी और बेटे के साथ वो कहीं और जा छुपा होगा। अमीर तुर्निताई ने बड़े गौर से बुरालून की तरफ देखते हुए ये जवाब दिया था। बुरालून थोड़ी देर तक तौसीफे अंदाज में तुर्निताई की तरफ देखता रहा, फिर उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। लूस मेरे बेटे, तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। मेरा दिल कहता है कि ऐसा ही हुआ होगा जैसा कि तुम कह रहे हो। इस आमूज ने साजबाज करके दरिया लितानी के किनारे मेरे मुसलह जवानों का खात्मा कर दिया होगा, खुद किसी महफूज जगह मुंतकिल हो गया होगा। लेकिन मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगा, उसे तलाश जरूर करूंगा, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। यहां तक कहने के बाद बुरालून लम्हे भर के लिए रुका। उसके बाद उसने मुतफिकराना से अंदाज में तुर्निताई को एक बार मुखातिब किया। लूस मेरे बेटे, ये हालिया जंग जो मिस्र के सुल्तान और हमारे मंगोलों बातिनियों के मुत्तहद लश्करों के साथ हुई है, इसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? जवाब में तुर्निताई फौरन बोल पड़ा। मोहतरम बुरालून, मैं यहाँ से निकलकर पहले सूसा फिर काहिरा गया। जिसके मकसद के तहत गया था उसमें मुझे खासी कामयाबी हुई है। इसके मुतालिक मैं तफसील बाद में कहूँगा। काहिरा में क़याम के दौरान ही मुझे खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान रुकनुद्दीन बहरे रूम के किनारे नसरानी रियासतों के खिलाफ हरकत में आना चाहता है। लिहाजा मैं काहिरा से निकला और मुत्तहद लश्कर में शामिल हो गया था ताकि मुसलमानों के खिलाफ जंग कर सकूं। बुरालून, मैं ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं करता कि शिकस्त हमें हमारी कोताहियों और हमारी जंगी नातजुर्बाकारी से हुई है। यहाँ तक कहने के बाद तुर्निताई दम लेने के लिए रुका। फिर उसने बात को आगे बढ़ाया। जो उसके पहले में 3 अजनबी अशखास बैठे हुए थे उन्होंने इंतहा दर्जा नापसंद किया। उन तीनों के चेहरों पर तुर्निताई की गुफ्तगू से नापसंदगी के आसार वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। बुरालून ने मुस्कुराते हुए पूछा, लूस मेरे बेटे, तुम्हारे ख्याल में हमारे मुत्तहद लश्कर में क्या खामियां थी? किस बिना पर हमें शिकस्त हुई? इस पर तुर्निताई कह उठा। मोहतरम बुरालून, हमारे मुत्तहद लश्कर ने पहली हिमाकत ये की कि सुल्तान रुकनुद्दीन का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर डाला। बज़ाहिर उनका मकसद ये था कि वो सुल्तान को घेर लेंगे और 2 तरफा हमला करके सुल्तान को अपने सामने बेबस और मजबूर कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मिस्र का सुल्तान जंगों का वसी तजुर्बा रखता है। इससे पहले वो सिपह सालार की हैसियत से फ्रांस के हुक्मरान लुई को शिकस्त दे चुका है। यही नहीं, हिलाकू के बेहतरीन लश्कर को उसने अर्ज फिलिस्तीन में बदतरीन शिकस्त दी थी। लिहाजा हमारे मुत्तहद लश्कर ने मिस्र के सुल्तान की जंगी ममारत को गलत अंदाजा लगाया।
हमारे मुत्तहद लश्कर को चाहिए था कि अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बजाय अपनी कुव्वत को यकजा कर रखते और एक ही जगह होकर सुल्तान पर नाक़ाबिल तलाफी ज़रब लगाते। दूसरी गलती और हिमाकत जो हमारे लश्कर से हुई है वो ये कि अगर उन्होंने अलकरक के किले से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करना था और अपने लश्कर को 2 हिस्सों में ही तकसीम करना था तो कम अज कम अलकरक के किले के दरवाजों की हिफाजत का माकूल इंतजाम किया होता। उन्हें चाहिए था कि अलकरक की फसील के ऊपर अपने तीर अंदाज और कुछ लश्करी बैठाते और जब सुल्तान के हाथों शिकस्त हुई होती तो ये अलकरक किले में दाखिल होकर महसूर होकर सुल्तान का मुकाबला करते और जंग को तूल देते। इस तरह सुल्तान मुहासरे से तंग आकर काहिरा जाने पर मजबूर हो जाता। लेकिन हमारे मुत्तहद लश्कर ने ऐसा नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब लश्कर के दोनों हिस्सों को सुल्तान ने बदतरीन शिकस्त दी और शिकस्त खाकर जब हमारे मुत्तहद लश्कर ने शहर की तरफ भागना चाहा तो मिस्र के सुल्तान ने बड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेते हुए शहर में दाखिल होने से सारे रास्ते बंद कर दिए। मुत्तहद लश्कर का उसने खूब कत्लेआम किया। लश्कर का बहुत कम हिस्सा अलकरक से भागकर कैसरिया की तरफ भागने में कामयाब हो सका। यहाँ तक कहने के बाद तुर्निताई जब खामोश हुआ तब उसके पहलू में जो 3 अजनबी बैठे हुए थे उनमें से एक जिसकी शक्ल और शुबाहत मंगोलों जैसी थी उसने तुर्निताई को मुखातिब किया। सुन नौवारिद, अपने हुलिये से तू मुझे एक मामूली दर्जे का राहिब लगता है। जंग से मुतालिक जो तूने तजुर्बा किया है मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता। एक राहिब क्या जाने कि जंग की तरतीब क्या होनी चाहिए। बज़ाहिर जो लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया था वो दुरुस्त था। हमारे इरादे ये थे कि 2 तरफा हमलावर होकर हम मिस्र के सुल्तान को शिकस्त देंगे। वो मंगोल यही तक कहने पाया था कि अमीर तुर्निताई खफखफी का इजहार करते हुए बोल पड़ा, अजनबी मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन तू मुझे अपनी शक्ल शुबाहत से मंगोल लगता है। तेरी गुफ्तगू से मुझे पता चलता है कि तू जंग का कोई तजुर्बा नहीं रखता और ना जंगी उसूलों से तुझे कोई आगाही है। देख भाले बास, अगर तुम लोग अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करके सुल्तान को अपने सामने बेबस करना चाहते थे तो तुमने ये ना सोचा था कि सुल्तान के जासूस भी काम कर रहे होंगे और मिस्र के सुल्तान ने भी तुम्हारे लश्कर को 2 हिस्सों में निपटने के लिए मुनासिब और खातिर खा इंतजाम किया होगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम मंगोल बड़े दिलेर और बड़े जंगजू मशहूर हो, लेकिन मेरे ख्याल में अमली तौर पर तुम इन अवसाफ से बिल्कुल यकसीर और बेपरवाह हो। मंगोल इस पर गुस्से में ताव खाता हुआ अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ में वो तलवार के दस्ते पर ले गया और गरज कर बोला, अजनबी अगर तू राहिब ना होता और मजीद ये कि तू मोहतरम बुरालून का जानने वाला ना होता तो अब तक मैं तेरी गर्दन काट चुका होता। तो अपनी हुदूद से बाहर निकलकर मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है। इस मंगोल की इस गुफ्तगू से गुस्से और गजबनागी में तुर्निताई की हालत अजीब और गरीब सी हो गई थी। उसकी आंखों में सुराब, शश, जिहद चलते हुए अंगार भड़क उठे थे, जबकि उसके चेहरे पर माजी के असीर लम्हे, जब्त के छोटे दामन और यही मांगते जाबिर जज्बों का तूफान था। कुछ देर तक वो खामोश रहा। उसके बाद इंतहाई गुस्से और कहरमानी की हालत में तुर्निताई अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गया। साथ ही उसकी आवाज सुनाई दी, अजनबी मैं नहीं जानता तू कौन है और मोहतरम बुरालून के यहाँ तेरा क्या मकाम है, क्या हैसियत है, पर देख तुझसे तारुफ हासिल किए बगैर मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूँ और साथ ही तुम पर यह भी पेशगी इंकिशाफ करता हूँ कि मेरी तलवार के तेज धार तुझे शिकस्त और नामुरादी के भंवर में डुबो कर रख देंगे। कबल इसके कि वो मंगोल तुर्निताई के इस गुफ्तगू का जवाब देता बुरालून मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, लूस मेरे बेटे, मंगोलों का जो लश्कर नसरानी के मुत्तहद लश्कर के पहलू ब पहलू मिस्र के सुल्तान के खिलाफ जंग करने के लिए आया था, एक जवान उस लश्कर का सिपह सालार आला है। इसका नाम सिरयूक है। इसने अपने लश्कर को अपने एक नायब के हवाले किया और खुद उसने मेरे पास क़याम किया, इसलिए कि अक्सर और बेशतर इससे पहले मेरे यहाँ आता जाता रहा और मेरा खूब जानने वाला है। जहाँ तक इसके साथ बैठे 2 जवानों का ताल्लुक है तो इनका ताल्लुक शेखुल जबल से है। ये बातिनी है। इनमें से एक का नाम मुनीब और दूसरे का नाम तय्यूमून है। ल्यूस मेरे बेटे, शायद तुम्हें खबर हो गई होगी कि हमारा बातिनों और मंगोलों के साथ रब्त और ताल्लुक है। मैंने इस मुनीब और तय्यूमून की खिदमत इनके हुक्मरान से इसलिए हासिल की है कि जब तुम मेरे बेटे की कातिल की निशानदही कर सको तो मैं उनके जरिए उस कातिल का ठिकाना लगा सकूं। इसलिए कि तुम जानते हो कि खुफिया तरीके से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में ये बातिन अपनी मिसाल अपना जवाब नहीं रखते। तो निताई ने थोड़ी देर तक दोनों बातिनों की तरफ कहर भरे अंदाज में देखा, फिर उसने बुरालून को मुखातिब किया, मोहतरम बुरालून, मुनीब और तय्यूमून नाम के दोनों बातिनी आपके किसी काम के आएंगे। ये मुझे खुद अपनी जिंदगियों से बेजार लगते हैं। ये आपका इतना मुश्किल और अहम तरीन काम कैसे अंजाम दे सकेंगे। इस पर बातिनों में से एक, जिसका नाम मुनीब था, फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ
और इंतहा खोलते हुए और एहतिजाजी लहजे में बोल पड़ा, नौजवान तू राहिब है और अपनी रहबानियत ही में मसरूफ रहे। इसके बाद उस बातिनी ने बुरालून की तरफ देखते हुए कहा, मोहतरम बुरालून, क्या राहिब अपनी खुददारी के आंचल, अपने मोजिज़ा तख्लीक और अपनी उम्मीदों के घर सजाने में कुछ ज्यादा ही लाफजनी से काम नहीं ले रहा? राहिब होते हुए ऐसी गुफ्तगू कर रहा है जो सिर्फ एक तेजन को ही जेब देती है। उसके साथ ही वो बातिनी दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। बुरालून के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि उसकी गुफ्तगू को बिरनिस ने इंतहा हकारत से बर्दाश्त किया था। ताहम इस मौके पर बुरालून बोल पड़ा, सुनो यसरुक, मुनीब और कीमून, तुम तीनों इस राहिब के मुतालिक गलत अंदाजे लगा रहे हो। ये एक ऐसा राहिब है जो ख्वाबों को नवाह में तब्दील करने का फन जानता है। बुरालून की इस गुफ्तगू पर कीमून फिर उठ खड़ा हुआ, मोहतरम बुरालून, मैं समझता हूँ आप भी इस राहिब की जामदाराना तरफदारी कर रहे हैं, वरना मैं ये कहूँगा ये राहिब अभी तक अपनी गुफ्तगू से यूं लगता है गोया ये उड़न तश्तरियों की कहानियों और ख्वाबों की सुनहरी परियों की दास्तानें सुनकर अपना दिल बहलाने वाला और वो बातिनी यही तक कहने पाया था कि कैसर में मृत्यु निताई फिर गुस्सीली आवाज गूंजी, सुनो दोनों बातिनों, अगर ये मंगोल लश्कर का सालार यसरुक मेरे साथ तेजनी का मुकाबला करता है तो इसके बाद मैं तुम दोनों को एक साथ मुकाबले की दावत दूंगा। बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि सुर्यू के सीने पर शिकस्त और बदनामी के तोहफे सजाने के बाद मैं तुम दोनों से तेजनी का एक साथ मुकाबला करना पसंद करूंगा। क्या तुम मेरे इस चैलेंज को कबूल करते हो? इस पर यसरुक फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और खोलते हुए लहजे में कहने लगा, देख राहिब, मैं तेरे इस चैलेंज को कबूल करता हूँ और तुझे पेशेगी इत्तला देता हूँ कि इस मुकाबले के बाद तेरी हालत मेरे सामने हिसार बेबसर से मुख्तलिफ नहीं होगी। इसके साथ ही एक झटके के साथ यसरुक ने अपनी तलवार बेनियाम की और बुरालून की तरफ देखा। मोहतरम बुरालून, क्या आप मुझे इस राहिब से तेजनी का मुकाबला करने की इजाजत देते हैं? ये अपनी हुदूद से बढ़कर गुफ्तगू कर रहा है और मैं इसकी इस गुफ्तगू के सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं इसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तेजनी इसके बस का रोग नहीं, बस ये अपनी रहबानियत ही में महदूद रहे। बुरालून के बोलने से पहले ही उसका सिपह सालार आला सिगर बोल पड़ा, यसरुक, मैं तुझे मशवरा दूंगा कि इस लंगड़े राहिब से तेजनी का मुकाबला मत कर, ना ही अपनी ताकत और कुव्वत में इससे टकराना। ये राहिब इंतहा हौलनाक किस्म का इंसान है, ऐसा इंसान जो अपने मुखालिफों, अपने दुश्मनों को सलाखों के पीछे बेड़ियों में जकड़ने का हुनर जानता है। जवाब में यसरुक खोलते हुए लहजे में बोल पड़ा, सिगर, तू मुझे चाहे कैसा भी मशवरा दे, मैं तेरे मशवरे को कबूल करने वाला नहीं। अगर मोहतरम बुरालून मुझे मुकाबला करने की इजाजत दे तो मैं इस राहिब से जरूर मुकाबला करना पसंद करूंगा। इस मौके पर बिरनिस मुस्कुराते हुए अपना मुंह अपने बाप के कान के पास ले गई और सरगोशी की, ऐ मेरे बाप, इस मंगोल सिपह सालार यसरुक को लूज से टकराने की जरूर इजाजत दी जाए। मैं चाहती हूँ कि कैसर के इस कमरे में लूज तेजनी के फन में इसे शिकस्त देकर इसके गुरूर, इसकी हट धर्मी, इसके मसनूई अना को अपने पांव तले रोंद कर रख दे। बिरनिस की उस गुफ्तगू से बुरालून के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो कह उठा, देख बेटी, तू ठीक ही कहती है। इसके बाद बुरालून ने यसरुक की तरफ देखा और अपना फैसला दिया, यसरुक, तुम शही नशीन से नीचे उतरो, मैं तुम्हें राहिब लूज से मुकाबला करने की इजाजत देता हूँ। यकीनन तुम दोनों का तेजनी का मुकाबला हमारे लिए बेहतरीन तफरीह का बाइस बनेगा। बुरालून की यूं रजामंदी का इजहार करने पर यसरुक खुश हो गया था। फिर वो शही नशीन से नीचे उतरा। जब वो अमीर तुर्निताई के करीब गया तो अमीर तुर्निताई ने एक बार कहर बहरानी अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहा, सुन यसरुक, यूं बच्चों की तरह सीना ताने मेरे सामने ना, अपनी ढाल भी अपने साथ ला, इसलिए कि जब तुम मेरे सामने इस मुकाबले में नाकामी और नामुरादी से दो चार होगा तो तेरे दिल में यकीनन ये हसरत रह जाएगी कि काश तो अपनी ढाल भी लेकर मेरे साथ मुकाबला करने पर उतरता। लिहाजा मैं पहले ही तुम्हें इजाजत देता हूँ कि अपनी ढाल अपने साथ लेकर आओ। जवाब में यसरुक ने दोनों बातिनियों में से जिसका नाम कीमून था उसे मखसूस इशारा किया और जिस नशिस्त पर यसरुक बैठा हुआ था उसके करीब उसे उसकी ढाल उठाकर कीमून ने यसरुक को थमा दी। उसके बाद अपनी ढाल और तलवार लहराता हुआ यसरुक आगे बढ़ा और तुर्निताई को मुखातिब किया, लंगड़े राहिब, मैं देखता हूँ तेरी तलवार अभी नियाम से बाहर नहीं आई और तेरे पास ढाल भी नहीं है। मैं भी पसंद करूंगा कि तू अपनी तलवार के साथ साथ अपनी ढाल भी संभाल ले और मुझसे मुकाबला कर। जवाब में एक झटके के साथ तुर्निताई ने अपनी तलवार बेनियाम की। तलवार बेनियाम करने का अमीर तुर्निताई का यह अंदाज यकीनन दोनों बातिनी और मंगोल सिपह सालार के लिए हैरत कुन था। वो इसलिए कि जिस अंदाज में तुर्निताई ने तलवार निकाली थी, यकीनन वो अंदाज एक माहिर और जच्चे और तिले तेजन का था। साथ ही अमीर तुर्निताई की आवाज भी सुनाई दी,
देख यसरूब, तेरे जैसा बचकाना जहन रखने वाले के साथ मैं ढाल इस्तेमाल नहीं करूंगा। तू देखता है मेरे हाथ में आसा है। मेरे ख्याल में अगर मेरी तलवार भी रख दूं तब भी मेरा आसा ही तुम्हारे लिए काफी है। ताहम मेरी तलवार तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। तू बस मुझ पर हमले की इब्तिदा कर, फिर उसके बाद तुझे अपना अंजाम यूं वाज़े नजर आएगा जैसे जिस तरह आधी रात के वक्त बेचांद रात में सितारे नजर आते हैं। मंगोल सरदार पहले गुस्से और गजबनाकी में भरा हुआ था। फौरन आगे बढ़ा और तलवार का एक वार उसने तुर्निताई पर किया। यसरूब के वार को तुर्निताई ने अपनी तलवार पर रोका। इसके साथ ही यसरूब ने अपनी ढाल बुलंद की और वो चाहता था कि ढाल के एक ज़रब पर वो तुर्निताई की कनपट्टी पर लगाए, लेकिन तुर्निताई अपने आहने आसे को हरकत में लाया और अपने आप से दूर ही आसा मारकर यसरूब की ढाल को उसने रोक दिया था। इसके बाद बड़ी तेजी से तुर्निताई ने अपनी तलवार अलहदा की। फिर उसने उस तेजी के साथ यसरूब पर वार करना शुरू कर दिए थे कि यसरूब एक तरह से बदहवासी का शिकार हो गया था। उसकी बदहवासी से फायदा उठाते हुए तुर्निताई ने अपने हमलों में और तेजी पैदा कर दी थी, यहाँ तक कि वो यसरूब को उल्टे पांव पीछे हटने पर मजबूर कर चुका था। थोड़ी देर तक तुर्निताई ताबड़तोड़ हमले करता हुआ केसर के उस कमरे के अंदर यसरूब को उल्टे पांव भगाता रहा। उल्टे पांव भागने की इस कैफियत को यसरूब शायद अपने लिए तौहीन आमेज ख्याल कर रहा था, लिहाजा बड़ी मुश्किल से वो एक जगह रुका। तो अमीर की तलवार को अपनी तलवार पर रोकने के बाद एक बार फिर अपनी ढाल उसने तुर्निताई के सर पर दे मारना चाही, पर इस बार यसरूब को नाकामयाबी हुई, इसलिए कि उसकी ढाल को तुर्निताई ने अपने आसे के ऊपर वाले हिस्से पर रोका था। साथ ही आसे का निचला हिस्सा इस जोर से यसरूब की कनपट्टी पर दे मारा था कि यसरूब घिसक कर रह गया था। यसरूब की इस कैफियत से तुर्निताई ने फौरन फायदा उठाया। अपनी तलवार को उसने यसरूब की तलवार से ही टकराता रहने दिया, पर अपने आहने आसे को हरकत में लाते हुए उस जोर से यसरूब के बाएं बाजू पर मारा कि यसरूब से उसकी ढाल छूटकर दूर जा गिरी। साथ ही तुर्निताई इस बार आसे की जरब मंगोल सरदार यसरूब की गर्दन पर मारी कि यसरूब लड़खड़ा गया। तुर्निताई आगे बढ़ा, उस जोर से दाएं लात यसरूब के पेट में मारी कि यसरूब शही नशीन के करीब बेबस सा होकर गिर गया। तुर्निताई आगे बढ़ा, एक सख्त झटके के साथ उसने यसरूब से उसकी तलवार छीनकर शही नशीन पर फेंक दी। यसरूब ने जो अपने सर पर आहनी खुद पहना हुआ था वो भी उतार कर अमीर तुर्निताई ने शही नशीन पर फेंका। फिर यसरूब को उसने बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और लगातार कई तमाचे दाएं बाएं उसके मुंह पर मारे। फिर अपना दायां हाथ तुर्निताई ने यसरूब की गर्दन पर रखा और एक हाथ से उसे ऊपर उठाया लहराते हुए बुरी तरह शही नशीन पर पटक दिया था। तुर्निताई की इस कारगुजारी पर जहां बिरनीस खुशी से फूले ना समा रही थी, वहां बुरालून भी बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार कर रहा था। शही नशीन पर गिरने के बाद मंगोल सिपह सालार यसरूब बीमारियों जैसे अंदाज में उठा। अपने कपड़े उसने झाड़े, शर्मिंदगी और खफत में इधर उधर देखता हुआ फिर वो उस नशिस्त पर बैठ गया था जहां से उठकर वो मुकाबले के लिए उतरा था। इस मौके पर बुरालून के सिपह सालार आला सेगर ने उसे मुखातिब किया, यसरूब, मैंने तुम्हें कहा न था कि इस लंगड़े राहिब से मुकाबला मत करना। ये राहिब इंतहाई खूंखार और मुहिब है, तेज जनी में इसे शिकस्त देना यूं जानो नामुमकिन है। यसरूब ने अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए जवाब दिया, तेरा कहना दुरुस्त है, मैं इसे एक मामूली राहिब ख्याल करता था और मेरा ख्याल था कि मैं इसे रहबानियत तक महदूद कर दूंगा, लेकिन मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। मैं समझता हूँ इंतहा का तेज जन और एक खूंखार राहिब है जिससे मुकाबला करना बेवकूफ़ी और हिमाकत है। यहाँ तक कहते कहते यसरूब खामोश हो गया, इसलिए कि तुर्निताई ने दोनों बातिनों को मुखातिब किया, सुनो दोनों बातिनों, अब तुम्हारी बारी है, मेरे साथ मुकाबले पर आओ। मंगोल सरदार यसरूब की तरफ देखो, मेरे साथ मुकाबले से पहले ये रंगीन कड़कते कागज की तरह अकड़ रहा था। तुम दोनों ने देखा, मेरे मुकाबले के बाद अब एक फूली बिसरी कलियों जैसा होकर रह गया है, इसकी ताकत टूट चुकी है। सुनो दोनों बातिनियों, अब जबकि मैं इस मंगोल सरदार यसरूब को शिकस्त दे चुका हूँ तो तुम्हारी बारी है। मैं देखता हूँ तुम दोनों के चेहरे पीले हो रहे हैं और तुम मुकाबले से पहलू तय करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं राहिब होते हुए भी तुम्हें अपने सामने झुकाने की हिम्मत रखता हूँ। तुर्निताई की इस गुफ्तगू के जवाब में एक बातिनी बोल पड़ा, तू शायद पूरी तरह हमारी हकीकत से आगाह नहीं है। जबले शेख की फिदाई जहरीले खंजर की तरह है जो जहां भी लगता है अपना सर दिखाए बगैर नहीं रहता। जब अपने दुश्मन पर वारिद होते हैं उसकी हालत दुआ के लिए उठे हुए हाथों की तरह बना कर रख देते हैं। देख राहिब, इस बज़्म लामकाम में हम जबले शेख की फिदाई दीन का हंगामा, रात का सन्नाटा बर्पा कर देने का फन जानते हैं।
अमीर तुर्निताई थोड़ी देर तक उन बातिनों को मुस्कुरा कर देखता रहा, फिर खोलते हुए लहजे में उसकी आवाज़ सुनाई दी, सुनो दोनों गुनाहों के गुमाश्तों, मैं बज़ाहिर एक मामूली सा राहिब हूँ, लेकिन याद रखना मैं निज़ाकतों को शिद्दत, रोशनी को आतिश वहशत बनाकर रखने का फ़न खूब जानता हूँ। मैं जब अपने मद्दे मुकाबिल अपने दुश्मन पर हमलावर होता हूँ तो उसे ऐसा समा बांधता हूँ जैसे नशे कुर्ब पर तीरों का बिस्तर बिछा दिया गया हो। दोनों फिदाई वाकई अमीर तुर्निताई से मुकाबला करने से पीछे हट रहे थे, लेकिन तुर्निताई की तंजिया गुफ्तगू ने उन दोनों को मुकाबला करने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा वो दोनों अपनी जगह से उठे और अपनी तलवार बेनियाम करते हुए तुर्निताई के मुकाबले आए थे। उन्हें अपने सामने देखते हुए तुर्निताई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने तंजिया से अंदाज में उन्हें मुखातिब किया, शेखुल जबल के पालतू कुत्तों, अपनी ढाले में संभाल लो और मुझ पर हमलावर होने की इब्तिदा करो, ताकि मैं तुम पर साबित करूं कि एक नसरानी राहिब कैसे और किस तरह तुम दोनों जहरीले बातिनों को अपने सामने जेर करता है। इस पर क़य्यूमून ने तुर्निताई की इस गुफ्तगू का जवाब दिया, देख राहिब, अपनी तेज़ पर इतना ज्यादा भी मत इतरा, अभी थोड़ी देर तक फैसला हो जाएगा कि तू कितने पानी में खड़ा है। अब तू संभल, हम दोनों अब तुम पर हमलावर होने लगे हैं। जवाब में तुर्निताई ने अपने दाहिनी हाथ की गिरफ्त तलवार पर बाएं हाथ की गिरफ्त अपने आहिने आसे पर मजबूत कर ली थी। उसी वक्त दोनों बातिनें आगे बढ़े और एक साथ उन्होंने तुर्निताई पर अपनी तलवार बरसा दी थी। तुर्निताई ने दोनों तलवार को अपने आसे पर रोकी थी। इस मौके पर तुर्निताई चाहता था कि दोनों की तलवारों को अपने आसे पर रोकने के बाद अपनी तलवार से मामूली सा जख्म करे, लेकिन बातिनें भी बड़े अय्यार थे। उनमें से एक फौरन पीछे हटा और तुर्निताई की तलवार को अपनी तलवार पर फेर लिया था। इतनी देर तक तुर्निताई अपना दूसरा हरबा आजमा चुका था। वो इस तरह की एक फिदाई की तलवार तो तुर्निताई की तलवार से टकरा चुकी थी। उसकी दूसरे की तलवार अभी तक तुर्निताई के आहिने आसे की एक तरफ थी, जबकि आसा का अगला हिस्सा जिस पर तुर्निताई की गिरफ्त रखता था वो खाली था। पलक झपकने में तुर्निताई उस हिस्से को हरकत में लाया और लोहे के आसे का वो हिस्सा खूब ताकत और कुव्वत के साथ तुर्निताई ने उनमें से एक के सर पर दे मारा था। बस लोहे का वो आसा उसके सर पर लगना था कि वो चकराया और जमीन पर गिर गया। अपने एक साथी के गिरने पर दूसरा बातिन हैरान और परेशान था। वो अभी अपने गिरने वाले साथी की तरफ देख रहा था कि तुर्निताई ने इस अंदाजे से अपनी तलवार उसकी तलवार पर मारी कि उसकी तलवार को काट कर रख दिया। फिर वो लगातार ऐसे जोरदार घोंसे उस फिदाई के मारे कि फिदाई बल खाता हुआ फिजा में उछलता हुआ गिर गया था और अपने शहे नशीन पर बुरी तरह टकराया था। उसकी पीठ पर चोट आई थी और बेसद सा होता हुआ वो शहे नशीन के करीब गिर गया था। इससे फारिग होने के बाद तुर्निताई फिर दूसरे बातिनी की तरफ बढ़ा। पहले उसकी पेट में उसने सर पर उसने सख्त ठोकरें लगाई, फिर बालों से पकड़कर उसे उठाया और अपना आसा अपनी तलवार उसकी ने एक तरफ रख दी। दोनों हाथों पर उसे उठाया और पूरी तरह उसके साथ पूरी कुव्वत के साथ उसे उसके साथी पर पटक दिया था। ऐसा करने से दोनों बातिनें एक बार बुरी तरह कांप रहे थे। तुर्निताई पीछे हटा, बड़ी तेजी के साथ बारी बारी उसने अपनी तलवार और अपना आहनी आसा साफ किया। फिर शहे नशीन के करीब बातिनों के पास आया और दोनों की रानों पर एक बार उसने खूब कुव्वत के साथ अपना आहनी आसा मारा। दोनों उठो और शहे नशीन की जिन नशीस्तों पर तुम मुकाबले से पहले बैठे हुए थे वहां जाकर बैठो, अमीर तुर्निताई ने कहा था। अगर तुमने देर या ताखिर की तो याद रखना, मैं अपना आहनी आसा तुम्हारे जिस्म के हर आजू को दाग कर रख दूंगा। तुर्निताई के अल्फाज अदा होते ही वो दोनों बातिनें बड़ी तेजी से उठे और शहे नशीन के ऊपर अपनी नशीस्तों पर जा बैठे थे। तुर्निताई की इस हरकत, जुर्रत और कामरानी पर शहे नशीन के ऊपर बैठी बिरनीस खुशी में फूली ना समा जा रही थी। उसके साथ ही बुरालून की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। फिर तुर्निताई भी बिरनीस के पहले में खाली नशीस पर जाकर बैठ गया। इस मौके पर बुरालून ने अमीर तुर्निताई को मुखातिब किया, लूस मेरे बेटे, तुम यकीनन राहिब होने के बावजूद इन नौजवानों में से हो जो अपने मद्दे मुकाबिल को कागज के बेजान बदन, रोती, बिच्छू, छाती, तांबे, फूलों जैसा बनाकर रखते हो। जो तुम्हारा रफीक बने उसके लिए तुम्हारे साथ अनगिनत सुख है। जो तुम्हारा मद्दे मुकाबिल हो तुम्हारे सामना अपना जीवन हार जाता है। लूस मेरे बेटे, तुम अपनों के लिए यकीनन शाम के मेहरबान सूरज, तुम यकीनन सुलगता बारूद, पाताल की उपताल और जबर इस्तिबाद की सलीब हो। मैं तुम्हारी जात, तुम्हारे हुनर, तुम्हारी सनाई पर फख्र करता हूँ। जिस वक्त बुरालू ने गुफ्तगू कर रहा था उस वक्त बिरनीस बड़ी मोहब्बत, बड़े शौक, बड़ी चाहत में अमीर तुर्निताई की तरफ देखी जा रही थी। बुरालून जब खामोश हुआ तो तुर्निताई बोल पड़ा, मोहतरम बुरालून, तुम्हारे बेटे के अलावा बिलफोर्ट और दमिश्क की बिशिप और पादरों के कातिल को तलाश करने में कामयाब हो चुका हूँ। वो वाकई मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन का एक सरगर्दा सालार है
अभी मैं उसका नाम किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। वो इन दिनों जासूसी के गर्ज से कैसरिया गया हुआ है और मैं तुम लोगों को यहाँ सिर्फ एक रात क़याम करूंगा, फिर मैं कैसरिया का रुख करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं उससे टकराऊंगा तो उससे इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने तहिया कर रखा है कि मोहतरम बुरालिन कि मैं उसे जिंदा पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करूंगा, फिर जो चाहे तुम उससे सुलूक करना। इस मौके पर बिरनीस बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोल पड़ा, मोहतरम ल्यूस, तुम सुल्तान रुकनुद्दीन का वो सालार कौन है जिसने मेरे भाई के अलावा बिलफोर्ड और दमिश्क की बिशीप और दीगर पादरियों को कत्ल किया? तो निताई कहने लगा, देख बिरनीस, मैं कह चुका हूँ, अभी मैं उसका नाम जाहिर नहीं करूंगा। बस चंद रोज तक मुझे उम्मीद है कि मैं उसे जिंदा पकड़कर यहाँ लाऊंगा, फिर तुम दोनों बाप बेटी जो चाहे उससे सुलूक करना। मैं सिर्फ आज की रात बिलफोर्ड में क़याम करूंगा और कल सुबह ही सुबह यहाँ से कूच करूंगा। तुर्निताई की इस गुफ्तगू पर बिरनीस लम्हे भर के लिए अमीर तुर्निताई का हाथ थामा, फिर शहद भरे लहजे में कहने लगी, अगर आपने सिर्फ आज रात ही क़याम करना है और कल सुबह यहाँ से कूच करना है तो आप मेरे साथ आइए। इसके साथ ही बिरनीस तुर्निताई का हाथ थामे हुए कैसर के इस कमरे से निकल गई थी। तुर्निताई ने सिर्फ एक रात वहां बिलफोर्ड में बुरालिन के कैसर में गुजारी। दूसरे रोज सुबह ही सुबह वो कैसरिया की तरफ जाने के लिए रवाना हो चुका था। अमीर तुर्निताई ने बिलफोर्ड से कैसरिया की तरफ जाने वाली शाहिरा पर अभी चंद मील ही सफर तय किया था कि एकदम घोड़े की बाग तेजी से रुकते हुए वो रुक गया था, इसलिए कि उन वीरानों और दोलाखों में दाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिले से अचानक दो सवार नमूदार हुए थे और अमीर तुर्निताई की राह रोक खड़े हुए थे। तुर्निताई उन दोनों को पहचान ना सका, इसलिए कि वो अपने चेहरों को ढांपे हुए थे। एक झटके के साथ अमीर तुर्निताई ने अपनी तलवार बेनियाम कर ली थी। घोड़े की जेन के दाएं बाएं उस वक्त अमीर तुर्निताई की दो ढालें लटक रही थी। फिर एक ढाल उसने उतारी और ढाल के पुष्टि हिस्से में जो रस्सी बंधी हुई थी वो रस्सी उसने अपने गले में लटका दी थी। इस तरह उस ढाल से तुर्निताई ने अपना सीना ढांप लिया था। शायद ये तुर्निताई ने अपनी हिफाजत के लिए किया था। दूसरी ढाल पर उसने अपने बाएं हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली थी, जबकि अपने सर पर बंधे हुए अमामे के नीचे पहले ही उसने आईनी खुद पहना रखा था। फिर उसने अपनी तलवार फिजा में इंतहाई जोशीले अंदाज में लहराई और राह रोकने वालों को मुखातिब किया, सुनो वीरानों और दोलाखों में मेरी राह रोकने वालों, अपने चेहरों पर पड़े हुए नकाब हटाओ और बताओ कि तुम कौन हो। उसके साथ ही वो दोनों ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिए थे। तुर्निताई ने देखा वो दोनों वही बातिनी थे जिन्हें तुर्निताई ने बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालिन के दरबार में मुकाबले के दौरान जलील और पसपामद किया था। अब इसके के वो दोनों को मुखातब करके तुर्निताई कुछ कहता, एक बातिनी इससे पहले ही बोल पड़ा और तुर्निताई को मुखातिब किया, लंगड़े, तू हमें जानते पहचानते हुए भी हमारी असलियत हमसे पूछता है। हम तो खूंखार लोग हैं जो मुहिम और वहशत और खूंखारी की निहायत ही नहीं, बल्कि हम तो अपने दुश्मनों, अपने मुखालिफों से उनकी दानिश, आला और आत्मा की एक सुई भी चुटकी भर खुशियों की तरह छीन लेते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो बाती ने जब खामोश हुआ तो तुर्निताई का चेहरा सुर्ख और आंखें खूंखारी इख्तियार कर गई थी। फिर इन वीरानों में अमीर तुर्निताई की खोलती हुई आवाज गूंजी, सुनो बातिनियों, इन वीरानों के अंदर किसी धोखे किसी फरेब में मत रहना। इस गूंगे बहरे नीले आसमानों तले तुम मुझे कोई मामूली इंसान मत समझना। यहाँ तक कहने के बाद तुर्निताई जब खामोश हुआ तो इस बार दूसरा बातिनी बोल पड़ा, लंगड़े रही तेरी ये लाफ और कज्जाब हम पर कारगुजार साबित नहीं होगी। हम बातिनी है और तुम जानते हो कि बातिनियों की खूंखारी से हर कोई खौफजदा रहता है। हम दोनों के सामने तुम जैसे लंगड़े राहिब की क्या हैसियत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बुरालिन के दरबार में अपने आईनी आसे की वजह से हम दोनों को ज़ेरो पस्त कर दिया था, पर इन वीरानों में हालात मुख्तलिफ होंगे। हम तुम्हें तुम्हारे घोड़े नीचे फेंकेंगे और तुम्हारे जिस्म काट कर यहाँ से चलते बनेंगे। उस बातिनी की इस गुफ्तगू पर तुर्निताई की आंखों में फैली सुर्खी और गहराई हो गई थी। उसके चेहरे पर गुस्से और गजबनाकी के रंग मजीद नुमायां होकर रह गए थे। उसके बाद फिर एक बार तुर्निताई की आवाज गूंजी, सुनो मुझे लंगड़ा राहिब ख्याल करने वालों, किसी धोखे किसी फरेब में मत रहना। ना मैं लंगड़ा राहिब हूँ और ना ही नसरानी। तुमने मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्करों के सालार अव्वल तुर्निताई के नाम सुना होगा। बदबख्तों में लंगड़ा राहिब नहीं तुर्निताई हो, और अब तुर्निताई इन वीरानों में तुम दोनों के लिए मौत साबित होगा। तुर्निताई के इस इंकिशाफ पर लम्हे भर गए दोनों बातिनियों के चेहरे पर मौत सी कैफियत छा गई थी। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और फिर तुर्निताई पर हमले की इब्तिदा की और उन्होंने अपना जहरीले खंजर तुर्निताई को दे मारे थे। तुर्निताई बड़ा चौकस और बड़ा चौकन्ना था। अपने जिस्म और अपने हाथ का जोरदार अंदाज में उसने इस्तेमाल किया था। दोनों खंजर अमीर तुर्निताई ने अपनी ढाल पर रोक लिए थे। उसके बाद एक इनकिलाब सा रूनुमा हो गया। पलक झपकने के अंदाज में तुर्निताई ने अपना खंजर निकाला
और कुछ यूं ताक कर मारा कि उसका खंजर उस बातिनी का दिल छेद कर रह गया था। दूसरा बातिनी अपने घोड़े को एड़ लगाकर तुर्निताई पर हमलावर होना चाहता था कि एक बातिनी का वो जहरीला खंजर जो अमीर तुर्निताई की छाती पर लटक की ढाल पर लगा था वो जेन पर ही पड़ा कर रह गया था। वो तुर्निताई ने फौरन उठाया और ताक कर जो बातिनी को मारा तो दूसरे बातिनी का सीना भी उस खंजर से चीरता हुआ निकल गया था। वीरानों के अंदर लम्हे भर के लिए एक बादी दिगर दो चीखें बुलंद हुई, फिर दोनों बातिनी अपने घोड़ों पर गिरकर दम तोड़ गए थे। तो निताई आगे बढ़ा, अपने घोड़े से उतरकर उसने मरने वाले दोनों बातिनों की लाशों का जायजा लिया। वो खत्म हो चुके थे। फिर उनके लिबास से उसने तलाशी ली, उनके लिबास से उसे काफी नकदी हाथ लगी। फिर उसने उनके घोड़ों का जायजा लिया, वहां भी चमड़े की खिरचीने में नकदी की कुछ थैलियां थी, खाने पीने का कुछ सामान था। खाने पीने का सारा सामान निकालकर उसने शाहिरा की एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद मरने वालों के लिबास से अपना खंजर साफ करके उसने नियान में किया। दोनों लाशों को उठाकर शाहिरा के किनारे उसने एक नशीब में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। मरने वालों के घोड़ों को उसने एक दूसरे से जकड़ा। उसके बाद अपने घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़ों को आगे आगे हाँकता हुआ वो बड़ी तेजी से उस शाहिरा पर सफर करने लगा था जो कैसरिया की तरफ जाती थी। बिलफोर्ड का हुक्मरान बुरालिन और उसकी बेटी बिरनीस दोनों महल से मुत्तसिल बाग में चहलकदमी कर रहे थे कि बुरालिन का चौकीदार तकरीबन भागता हुआ आया और बुरालिन से कहने लगा, मेरे आका मंगोलों का सरदार जो सुबह के वक्त कहीं बाहर गया हुआ था लौटा है और फिलफोर वो आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। वो कुछ बदहवास सा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आया हो। ये सारी गुफ्तगू जो चौकीदार एक ही सांस में कह गया था। बुरालिन ने उसे तेज निगाहों से देखा। अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आया है या वो बदहवास लगता है तो फिर उसे रोकने की जरूरत ही नहीं थी, उसे फौरन मेरी तरफ भेज देते। अब जाओ, उसे फिलफोर मेरी तरफ भेजो ताकि मैं जानूं उसे क्या हादसा पेश आया है। उसके साथ ही वो चौकीदार मुड़ा और तकरीबन भागता हुआ चला गया। जो ही मंगोल सालार यसरूक बुरालिन के करीब आया, बुरालिन ने उसे मुखातिब किया, मेरा चौकीदार बता रहा था कि तुम बदहवास थे और तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है। इस पर यसरूक ने धीमी सी आवाज में कहा, देख बुरालिन, आपके चौकीदार का कहना दुरुस्त है। दरअसल मैं एक बहुत बड़े हादसे को देखने के बाद आपकी तरफ आ रहा हूँ। इस बार बिरनीस बोल पड़ी, यसरूक क्या तुम उस हादसे की तफसील ना बताओगे? यसरूक फौरन बोल पड़ा, मोहतरम बुरालिन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात मैंने दो बातिनियों के साथ आपके शाही मेहमान खाने में क़याम किया था। रात सोने से पहले मैं देखा वो दोनों बातिनें आपस में अजीब तरह की खुसर पुसर कर रहे थे। मुझे उनकी खुसर पसर से एक तरह का शक हुआ, इसलिए कि बातिनें अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने में बड़ी महारत रखते हैं। जिस वक्त उन्होंने खुसर पसर की थी तो मुझे शक हुआ था कि वो दोनों आपके लंगड़े राहिब के खिलाफ कोई दुश्मनी और अदावत रखते हैं और उसकी जान के दर पे है। लिहाजा मैंने उन दोनों पर निगाह रखनी शुरू कर दी थी। मंगोल सरदार यसरूक की इस गुफ्तगू से बिरनीस किस कदर परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। वो यसरूक से कुछ पूछना ही चाहती थी कि यसरूक फिर बोल पड़ा, अगले रोज सुबह के वक्त जब वो लंगड़े राहिब कैसरिया के लिए रवाना हुआ तब मैंने देखा वो दोनों बातिनें भी उसकी थोड़ी देर बाद अपने घोड़ों पर बैठकर रवाना हो गए थे। लंगड़े राहिब के फौरन बाद उनका घोड़े पर बैठकर इस तरफ जाना मेरे लिए शक व शुबहात खड़े कर गया था। लिहाजा मैं भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और बड़ी राजदारी से उनका ताकुब करने लगा। बिरनीस से ना रह गया और दरमियान में फौरन पूछ लिया, देख यसरूक फिर क्या हुआ? यसरूक मुस्कुराते हुए कहने लगा, देख बुरालिन की बेटी, मैं तफसील बताता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर ही अंदर उन दोनों बातिनियों का ताकुब करता रहा और वो कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर बल खाते हुए रास्तों पर सफर करते रहे तो मैंने देखा अचानक उन रास्तों को छोड़कर उस शाहिरा की तरफ गए जो बिलफोर शहर से कैसरिया की तरफ जाती थी। जब मैं भी उनके ताकुब में शाहिरा के करीब आया तो मैंने देखा शाहिरा के उस हिस्से पर लंगड़े राहिब जिसका नाम तुम लोगों ने लूस कहकर पुकारा था वो सफर कर रहा था। दोनों बातिनी शाहिरा पर आए और लंगड़े राहिब की राह रोक खड़े हुए। बिरनीस तरफ कर बोल पड़ी, यसरूक क्या वो दोनों लूस से टकराए और अगर टकराए तो क्या अंजाम हुआ? यसरूक फिर मुस्कुराते हुए कह रहा था, दोनों बातियों ने अपने चेहरों को ढांप रखा था और लंगड़े राहिब के उन्होंने राह रोक ली थी। कुछ देर तक उन दोनों के दरमियान तल खलामी हुई, फिर दोनों बातियों ने अपने चेहरों से नकाब हटा दिया। ये सारा मंजर एक कोहिस्तानी सिलसिले की चट्टान के पीछे खड़ा होकर मैं देख रहा था। ये चट्टान चूंकि शाहिरा के किनारे थी लिहाजा सारे मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। फिर ऐसा हुआ कि अचानक वो दोनों बातिनें हरकत में आए। एक साथ उन्होंने जहरीले खंजर लंगड़े राहिब को दे मारे थे। पर वो लंगड़ा राहिब जिसका नाम लूस बताते हो, मुझे राहिब नहीं लगता, वो अजीब तरह का इंसान है। इंतहाई चालाक, इंतहाई दानिशमंद, इंतहाई होशियार और मुस्ताद जवान है। जिस वक्त बातिनों ने उसकी राह रोकी थी उस वक्त उसने अपने घोड़े की जेन से बंधी हुई दोनों ढालें खुली थी। एक अपने गले में लटका कर अपने सीने पर रख ली थी और दूसरी अपने बाएं हाथ में रखी थी। जिस वक्त दोनों ने बातिनों में खंजर मारे थे तो उससे लंगड़े राहिब ने अपने बाएं हाथ
और छाती का कुछ ऐसा अजीब ज़ाविया बनाया था कि बातिनों का एक खंजर उसके हाथ में पकड़ी हुई ढाल पर और दूसरा छाती पर लटकती हुई ढाल पर लगा था। इस तरह वो उन दोनों के जहरीले खंजरों से महफूज रहा। पर उसी लम्हे उसने अजीब काम किया। अपने घोड़े की खर्चीन में से उसने एक खंजर निकाला और ताक कर जो मारा तो उसका खंजर एक बातिनी की दिल को चीरता हुआ निकल गया। दूसरा बातिन अपने साथी की इस तरह फिलफौर मरने पर बड़ा फिक्रमंद हुआ। ताहम एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बेनियाम की और लंगड़े राहिब पर हमलावर होने लगा। घोड़े को ये लगाई थी, पर उस वक्त तक लंगड़ा राहिब भी हरकत में आ चुका था। उसने दे मारा था, उसके घोड़ों की जेन पर गिरा था। उसने उठाकर उसके बातिनों को मारा, उसका भी खात्मा कर दिया। फिर दोनों लाशों को उठाकर उसने शाहिरा के किनारे दफन कर दिया और दोनों के घोड़ों को आपस में जकड़कर शाहिरा पर हाँकता हुआ केसरिया की तरफ चला गया। बुरालून थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, यसरूग, अगर कोई और इन दोनों बातिनों का खात्मा करता तो मुझे वाकई बेहद दुख और रंज होता, लेकिन चूंकि उन दोनों बदबख्तों ने लूस पर हमलावर होने की कोशिश की थी और लूस को मैं अपना बेटा समझता हूँ, लिहाजा मुझे उन दोनों बातिनों के मरने का कोई गम नहीं है। मैं खुश हूँ कि लूस ने उन दोनों का खात्मा कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों बदबख्त लूस से इंतकाम लेने पर तुल जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद बुरालून जब खामोश हुआ तो एक सरसरी सी निगाह यसरूग ने बिरनिस पर डाली। उसने देखा कि इस इंकिशाफ पर लूस यानी लंगड़े राहिब ने दोनों बातों का खात्मा कर दिया और केसरिया की तरफ रवाना हो गया। बिरनिस अंगूर की बेलों तले सोए चरवाहे जैसी पुरसुकून हो गई थी। उसका बाप भी अपनी बेटी की हालत देखते हुए खुशी और इत्मीनान में फूला नहीं समा रहा था। थोड़ी देर तक बुरालून बड़े शौक, बड़े जुस्तजू, बड़े प्यार से अपनी बेटी बिरनिस की तरफ देखता रहा। फिर मंगोल सरदार यसरूग को उसने मुखातिब किया। यसरूग, ये लंगड़ा राहिब लूस उन नडर और बेबाक जवानों में से है जो तीरों की सतीजाकारी में भी अपने दुश्मन के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ये लूस उन बेबाक नाखुदाओं में से है जो हवाओं से रिफाकत का हद बांधकर अनजानी मसाफतों तय करने लगते हैं। सुन यसरूग, लूस उन तेज जनों में से है जो अपनी जुर्रत, सरकश, अपनी गुस्ताखाना शुजात से जुल्म की आग में तेग ढालता हुआ आहिन और जबर की सलाखों जैसा है। बुरालून की इस गुफ्तगू पर बिरनिस बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। प्यार में आगे बढ़ते हुए उसने अपनी बात का हाथ चूम लिया। फिर उसे महल के सुत्तूनती हिस्से की तरफ ले गई। यसरूग भी उनके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ा सा आगे जाकर वो फिर बोल पड़ा, मोहतरम बुरालून, मैं आज आपसे रुखसत होना पसंद करूंगा। बुरालून रुक गया और यसरूग को मुखातब करके कहने लगा, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। देखो, गुज़िश्ता जंग में जो मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन के हाथों हमारे मुत्तहद लश्कर को शिकस्त हुई है, इसका कोई गलत असर कबूल ना करना। हम करीब एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर सुल्तान के सामने आएंगे और उससे उसका इंतकाम लेंगे। इन दोनों सारी नसरानी दुनिया के लश्कर कैसरिया शहर में जमा हो रहे हैं और हमारा इरादा है कि कैसरिया से निकलकर मशरकी सरहदों पर ज़रब लगाएंगे। इसके साथ ही हाथ के आगे बढ़ाकर बुरालून ने यसरूग से मुसाफा किया और यसरूग पीछे हटता हुआ वहां से रुखसत हो गया था, जबकि पहले की तरफ बिरनिस अपने बाप बुरालून का हाथ थामे महल से सुकूनती हिस्से की तरफ जा रही थी।